سے جو نہ کیجیے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also۔ ہم دعا کریں گے۔ قدوس خداوند تیرے وعدوں کے لیے، تیرے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ جیسے تم نے آج اپنے کلام میں فرمایا، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تجھے کہہ دیتا، اور میں آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ خدا مجھ کو خود آئے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ نگری، یہ دنیا، مسافرت کا دور، یہ ٹینٹ ہے، لیکن تم نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے گھر تیار کی ہے، مینشن، جہاں کوئی چیز انہیں ضرورت نہیں پہنچا سکتی۔ آج جب ہم تیرے کلام میں سے دیکھتے ہیں تو ہمارے رہنمائی کرنا، ہمارے دلوں کو تیار کرتا ہے کہ تیرے کلام کو سمجھے اور اس پر عمل کر سکے۔ تیرے مقدس نام میں سکون سے پلیز تشریف رکھیں۔ Second coming of Jesus Christ۔ آج ہمارا مضمون ہے وہ ہے یسوع مسیح کی دوسری آمد ثانی۔ یسوع مسیح کی آمد ثانی جو ہے، اس کے ایکچولی 2 سٹیجز ہیں۔ ایک ریپچر ہے، جب یسوع مسیح آئے گا اور کلیسیا کو کا استقبال کرے گا، اور ایک وہ ہے جب یسوع مسیح لٹرلی آئیں گے۔ تو آج کا سبق جو ہے وہ ہے ہوگا فرسٹ سٹیج، نیکسٹ سنڈے وہ سیکنڈ سٹیج ہوگی، ایکچوئل جیسس جو ہے وہ دھرتی پر آئے گے۔ سو اگین جو حالات ہیں، یہ میرے سب کلام میں لکھے ہوئے ہیں، وہ ہم ایموشنلی ہمیں غم ہے ان چیزوں کا، ایسے ہونا ضرور ہے۔ تو اس کے لیے بھی اس سے پہلے کہ میں پہلا پورشن جو ہے اس کے بارے میں بتاؤں، there are 2 steps of second coming of Jesus Christ۔ یہ اینڈ ٹائم ہے۔ پروفیسیز، انبیاء کی صحیفے، نوشتے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں۔ فرسٹ اسٹیپ از اے ریپچر۔ لیٹن ورڈ ریپچر جو ہے ریپیو سے نکلا ہے۔ Seize or snatch in relation۔ غور سے سنیے گا، seize or snatch in relations۔ آپ کو پتا ہے کہ سگریٹ پینے والا سگریٹ والے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، بوتل پینے والا بوتل والے کے ساتھ بیٹھتا ہے، چگلیوں والا بھی اپنی ایک ٹیم ہے، لیکن snatch in relation جو پاکیزگی میں خدا کے خوف میں رہتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں پورے طور سے خدا کو دی ہیں، وہی جائیں گے آسمان پر۔ پہلا جو پورشن ہے ریپچر، سیز اور سنیچ ان ریلیشن۔ اگر خدا کے ساتھ کوئی ریلیشن ہوگی تو اڑائے جائیں گے، اگر نہیں تو زمین والی ریلیشن ہے تو زمین پر رہیں گے۔ اکیلی آپ اٹھائے جائیں، ٹرانسپورٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، اسنیچنگ اوے جبڑ کر یا اچک لے جانا، اکاٹا اکارڈنگ ٹو دا ریپچر تھیوری۔ ریپچر کا لفظ اردو بائبل میں نہیں ہے، لیکن اگر ہم دوسری لینگویجز میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ریپچر کا لفظ ملتا ہے۔ فرسٹ ڈے جو ہے second coming of Messiah
یہ متی رسول انجیل 24 باب 36 آیت میں لکھا ہے. اور یہ سٹیج کا مطلب ہے جو معنی ہے دی کمنگ. گریک ورڈ پروسیا. پروسیا کا مطلب ہے دی کمنگ. ضروری نہیں زمین پر آنا. دی کمنگ پروسیا ود اینجلس. اور یہ یسوع مسیح کی آمد سیکرٹلی ہوگی. نوبڈی نوز. یہ والی آمد کا کسی کو نہیں پتا کہ کب یسوع مسیح نے آ جانا ہے. اس لیے جاگتے رہو, دعا کرتے رہو, تیار رہو ٹو ٹیک ہز ریپورٹ. فرسٹ ٹائم ریپچر میں جب آنا ہے تو اس کے لوگ اٹھائے جائیں گے. جیسے لکھا ہے snatch in relation. اگر ریلیشن شپ ہے اس کے ساتھ تو تب بادوں پہ صرف مسیح ہونے سے وہ شخص نہیں اٹھایا جائے گا. کتنا میں نے اور آپ نے آپ کو چینج کیا ہے. غصہ مجھ میں بھی ہے, گالیاں میں بھی نکال سکتا ہوں, جھگڑا میں بھی کر سکتا ہوں, غصہ میں بھی کر سکتا ہوں, چوری میں بھی کر سکتا ہوں, سب کچھ کر سکتا ہوں. عام ہیومن ٹو. لیکن ان ساری چیزوں کے اوپر کیسے میں اوور کم پا سکتا ہوں؟ جب اوور کم آپ پائیں گے تب آپ فتح مند زندگی گزارتے ہیں. اگر آج بھی مجھ سے وہ غلطی ہو جاتی ہے, بپتسمہ لیا ہے, یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں, نو 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 نہیں جائے. ریلیشن شپ اگر اس کے ساتھ کنٹینیو ٹھیک ہے, اس کی بات کی جا رہی ہے. اسٹے فرسٹ. پڑوسی ریلیشن شپ کے ساتھ اٹھایا جانا ہے. اسی کے پاس لوگ اٹھائے جائیں گے. کلام مقدس میں لکھا ہے چھوڑ دیا جائے گا, اٹھا لیا جائے گا. وہ کون سا ہے جو اٹھا لیا جائے گا؟ گریوٹی. جو زمینی دنیاوی کام کرتے ہیں وہ رہ جائے گا اور اسی کے ساتھ وہاں اٹھا لیا جائے گا. یہ ہے اس کا مطلب. دوسری سٹیج ایکچوئل کمنگ, جب لٹرلی یسوع مسیح زمین پر آئیں گے. گریک ورڈ ہے ایپوکلیپسس. ایپوکلیپسس جو ہے اس کا مطلب ہے لٹرلی فزیکلی گلوریس اپیرنس کے ساتھ یسوع مسیح زمین پر آئیں گے. یہ سیکنڈ سٹیج ہے, یہ نیکسٹ ویک ہوگا. when he comes with the saints to judge the world. وہ لکھا ہے کہ اس پہ لوگ انصاف کریں گے. تو ہونا کیا ہے کہ جو اس کے سینٹس اٹھائے جائیں گے. جب یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ ایکچوئل کمنگ ہوگی, یہ جو اٹھائے گئے ہیں 7 سال تک یسوع مسیح کے ساتھ آسمان پر رہیں گے. اور یسوع مسیح جب لٹرلی زمین پر آئیں گے اور یہ مقدسین بھی یسوع مسیح کے ساتھ نیچے آئیں گے. یہ سیکنڈ کمنگ ہے دنیا کا انصاف کرنے کے لیے. تسلیق پہلا تسلیق 4 باب میں لکھا ہوا ہے. ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو اور دیکھیں گے ایکچولی ہونا کیا ہے دنیا میں. سو اس کو دیکھنے کے بعد میں اپنے سرکن کو جاری کروں گا. بچے نہیں ہیں, بچے اٹھا لیے جائیں گے.
हॉस्पिटल में बेड से उठाया, इंक्रीज द वॉल्यूम। वो फिर सेशन शुरू हो गई। ये औरत खा रही थी। और ये सारी तबाही हो गई। ये मीडिया के लोग जो यीशु को नहीं जिन्हें पता, वो हैरान होंगे कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन मेरी और आपके कलाम में, बाइबल में लिखा हुआ है कैसे है। ट्रेन जहाज क्रैश हो जाएंगे, चूंकि उठा लिया जाएगा और जहाज को या ट्रेन को संभालने वाला कोई नहीं। ये हालात मेरे से जो आने वाले हैं। ये घर में आया, इसकी बीवी जा चुकी है, खाली गई। हो गया फिर। थैंक यू। सो हालात मेरे जीजो जो सारे हमें बताते हैं प्रोफेसीज एंड टाइम की है। बॉटम लाइन ये है कि मैं और आप पूरे तौर से ग्रेविटी उसी चीज को खींचेगी जिससे वो मिलान करती है। रैप्चर फर्स्ट स्टेज, सीक्रेट करें। जब पहली बार रैप्चर होगा तो कलीसिया उठाई जाएगी, नोबडी नोस। कई लोग प्रोफेसी करते हैं यीशु मसीह इस स्टेट को आएंगे, इस स्टेट को आएंगे, इस स्टेट को आएंगे। कलाम कहता है बिलीव ना करना।
کہ یسوع مسیح کب آئے گا کسی کو نہیں پتا. پروسیا دی کمنگ اور یہ ریپچر یسوع مسیح بادلوں پہ آئیں گے اور جو سینٹس ہیں جو کلیسیا ہے وہ بادلوں پہ اٹھائی جائے گی. یسوع مسیح نیچے نہیں ہے بادلوں پہ جو فصل دی جائے اس کی سیکنڈ کمنگ کی خفیہ آمد ساتھ. پہلا تسلیکی 4:15-17 ہے. چنانچہ ہم تم سے خدا کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خدا کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے منہ سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے. کیونکہ خدا خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نسیگے کے ساتھ آئے گا. خدا یسوع مسیح خود کسی اور کو نہیں بھیجنا. اور پہلے جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خدا کا استقبال کریں. To meet the Lord in the air. اور اسی طرح ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں گے. پہلے جو ہوئے ہیں وہ جیتے گے. Why؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ یسوع مسیح کو 2000 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اس دنیا میں آئے اور اس کے بعد جو لوگ اس پر ایمان رکھتے تھے اور مر چکے ہیں. ایسا نہیں کہ جو زندہ ہیں وہ تو اٹھائے جائیں گے اور جو مر گئے ہیں مرنے تو مر گئے ہیں لیکن وہ ہم سے پہلے جی اٹھیں گے. اس لیے یہ لکھا ہے کہ جو مسیح میں ہوئے ہیں اگر میرے چیزوں میں اور آپ یسوع مسیح میں مرتے ہیں تو اگر مر چکے ہیں. کئی بار دیکھیں یسوع مسیح آمد ثانی کے بارے میں یہاں بھی کہا گیا ہے جلد آنے والا ہے جلد آنے والا ہے جلد آنے والا ہے. آتا نہیں ہے. ڈزنٹ میٹر. اگر آپ نے اپنی زندگی اس کو دی ہوئی ہے تو پھر وہ آ جائے یا کل آئے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ مر چکے ہیں تو یسوع مسیح جو ہے وہ جب آئیں گے تو پہلے یہ جو مر گئے ہیں یہ زندہ ہوں گے تاکہ ان کے لیے یہ نہ ہو کہ what about اگر یسوع مسیح کے آنے سے پہلے مر گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا جو کہ اڑائے جانا ہے. پہلے کلام کا لکھا ہے چنانچہ ہم تم کو خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں. یہ کلام میں لکھا ہے کہ پہلے جو مسیح میں ہوئے وہ جیتیں گے پھر ہم جو زندہ ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں. متی 24:38 سے 44 ورس. کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی. اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا. اس وقت 2 آدمی کھیت میں کام کرتے ہوں گے اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا ایک لے لیا جائے گا. اسی طرح 2 آدمی کھیت میں کام کرتے ہوں گے ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا. 2 عورتیں چکے کی استری ہوں گی ایک لے لی جائے گی دوسری چھوڑ دی جائے گی. بس جاتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا. لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کو کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہے گا. میرے عزیزو پہننے والے کا ٹائم نہیں ہے. اگر پتا ہونا فلانی ڈیٹ کو آئے گا سارے واپس میں لے کے تیرا آنا ٹائم آ کے کھلوتے ہیں کے جانا مجھے سے برات کے لیے آپ کو ٹائم اور ڈے بتایا جاتا ہے کیونکہ پتا ہے دلہا آنا ہے اس کے ساتھ جانا ہے. یہ سیکنڈ کمنگ میں نہیں بتایا جانا. اگر پتا ہوتا پھر سارے توبہ کر لینے سے وہ اس لیے نہیں کرتے بیکاز گریس ہے. یہ سلیپ جو ٹوٹی ہے اگر شریعت کا دور ہوتا تو اسی وقت آگ پہ آنی تھی. یہ فضل کا دور ہے اس لیے خدا خاموش ہے جو کہ اس نے عدالت کرنی ہے. اس لیے وہ سلیپ ٹوٹی. ایسا نہیں کہ ہمارا خدا کمزور ہے وہ اس لیے کہ فضل کا وہ معاف کرتا ہے. اس لیے تم بھی تیار رہو کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا
इब्ने आदम आ जाएगा. The Son of Man is coming at the hour you do not expect. और पहले थिस्सलुनीकियों 5:2-3 इस तरह इस वास्ते के तुम आप खूब जानते हो. You are fully aware कि खुदावन का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है. जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, कुछ भी नहीं हुआ, सारा कुछ ठीक ही है. जब लोग कहते होंगे सलामती और अमन है, everything is peaceful and secure, उस वक्त उन पर इस तरह नागहां हलाकत आएगी. किस तरह? जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं और वो हरगिज ना बचेंगे. As suddenly as the labor pain begin, औरतें जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है वो इस सिचुएशन को जानती हैं कि लेबर पेन जब लगती है तो किस तरह आती है उनको भी नहीं पता होता. ग्रंथी 15 में लिखा, देखो मैं तुमसे वेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सुनेंगे मगर सब बदल जाएंगे. और एक दम में, एक पल में, ब्लिंकिंग ऑफ आईज. ये देखिए आंख चमकने में कितना टाइम लगता है, इस तरह यीशु मसीह की आमद होगी. आंख ब्लिंकिंग ऑफ आईज, जैसे ब्लिंक किया गॉन. लेकिन किसी को नहीं पता कि कब यीशु मसीह आने वाले हैं. यहां पर भी यही लिखा है. और ये एकदम में, एक पल में, पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे. जब उठाए भी जाना है, हमारी ये बॉडी, हमारे ये कपड़े इधर रहेंगे, जलाली बदल में उठाए जाएंगे. क्रिश्चियनिटी में कोई जेंडरिज्म नहीं है. वहां लिखा है वहां पर खुदा के पास फरिश्तों की मानद होंगे. वहां मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आप मेल और फीमेल को पहचान सकेंगे कि ये मेरी बीवी थी, ये मेरी मां थी, ये मेरी बेटी थी. लेकिन मेरे सिस्टो वहां पर कोई बीवियों का कॉन्सेप्ट नहीं है. कलाम के मुताबिक, कुरान के मुताबिक, नबियों के सहीफे और नबीयों के मुताबिक यहां पर लिखा है जिस तरह तो कौन से एक बात है, कुछ ईमानदार रह जाए, एक कच्चे पक्के ईमानदार जिन्हें ना रह जाए. ईमानदार रहेंगे. यस, कलाम आता है, कलाम सुनाते हैं, सारा कुछ होगा. कच्चे पक्के जो हैं ये रह जाएंगे. उनको पता है कि खलासी नहीं, लेकिन उनका अंजाम क्या होगा, उनको गला कटवाना पड़ेगा. वो जो प्रॉपरली सेव नहीं हुए, जिनकी जिंदगियों से, जिनके खानदान से, जिनके दोस्तों से पता नहीं चलता कि ये शख्स सेव है, खुदा को नहीं पता सबसे बढ़कर कि इस शख्स ने मुझे अपना दिल दिया हुआ है, वो रह जाएंगे 3.5 बरस तक. वो चलेंगे और उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा. लिखा है बुत में रूप फूंक दी जाएगी. अजली चैनल टीवी वाले बुत में रूप फूंक दी जाएगी, वो बोलेगा. ये जो नूह है, क्या नूह के कुछ बच्चे रह गए थे? मैं अगर उसकी कलीसिया में शामिल है तो हम सारी की सारी कलीसिया उठाए जाएंगे. लूत के खानदान को जब कहा कि सदूम और अमोरा का हाल, गुनाह और जो जुल्म सितम इस मुल्क में होता है देखा नहीं जाता, तो लूत को कहा अपने खानदान लेकर निकलो. नूह को कहा अपने खानदान को लेकर निकलो. 120 साल तक कश्ती बनती रही है. नूह नबी 120 तक हर रोज मुनादी करता है, तूफान आने वाला है, तूफान आने वाला है, तूफान आने वाला है, और ये सारी दुनिया तबाह बर्बाद और गरक होने वाली है. Nobody believe. आज भी ऐसा ही है. यीशु मसीह आने वाले हैं. बहुत से सब दिल करके बैठे हुए, कुछ नहीं होता. ब्लिंक ऑफ योर आईज, आंख की झपकी के साथ. दूसरी जगह पे लिखा है ऐसे जैसे औरत
जब दर्द आती है बच्चा जन्मने के वक्त, उस तरह यीशु मसीह आएगा। एक पल में यीशु मसीह आएगा। जिस तरह चोर आता है उस तरह यीशु मसीह आएगा। और फिर जैसे पूरब से पश्चिम तक बिजली इधर चमकती है, नजर उधर आती है, इस तरह यीशु मसीह आएगा। मेरे यीशु उसने आने का टाइम नहीं दिया। सीक्रेट कमिंग, रैप्चर जो है ये खुफिया तौर से होगा, और वही लोग उठाए जाएंगे जो उसकी कलीसिया के बन गए, जो उसको दिल जान से मोहब्बत करते और अपना सारा कुछ उन्होंने उसी के लिए बिछा किया हुआ है। और वो लोग जो रह जाएंगे, मेरे यीशु को बहुत सी प्रॉब्लम, मुश्किल, आपने अभी वीडियो देखी, ये कुछ भी नहीं है। 1.5 घंटे की मूवीज बनी हुई है, आप घर में जाकर रैप्चर की वीडियोस देखना, बहुत बुरे हालात आने वाले हैं। अगर आप कलीसिया में हैं, खुदा यीशु मसीह के साथ पूरे तौर से चलते हैं, आपको इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं कि बाद में क्या होगा, आप उठा लिए जाएंगे। उन बातों में 3.5 साल तक कच्चे पक्के क्रिश्चियन रहेंगे, और अगर वो उनको क्या होगा, वो बुद्ध बोलेगा और आपके माथे पर 666 की या राइट हैंड पर 666 की मोहर लगाई जाएगी। अगर वो मोहर नहीं, ना आप कुछ खरीद सकते हैं, ना दूध ले सकते हैं, ना मेडिसिन ले सकते हैं, ना जॉब पे जा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आपको उसकी मेंबरशिप एंटी क्राइस्ट की लेनी पड़ेगी सरवाइव करने के लिए। लेकिन सरवाइव नहीं होगा, वो 3.5 साल जो है उसमें सर्वाइवल है। पिछले जो 3.5 है वो सारी डिस्ट्रक्शन है, पहाड़ टूट जाएंगे, आंधी, तूफान, ये सारा कुछ जाता रहेगा। 666 एंटी क्राइस्ट जब वो आएगा, तो मेरे से जो 3.5 साल कलीसिया वाली में है, अगर उसकी कलीसिया है और उसके साथ बादलों पे उड़कर जाना चाहते हैं, तो देन पूरे तौर से अपने आप को यीशु मसीह के हवाले कीजिएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि आटा नहीं मिलना तो चावल नहीं मिलना, जो बच्चे रह गए तो पे फाइंड आउट करना, आटा नहीं है, यू विल बी गॉन। पूरे तौर से दलेरी के साथ लोगों को बताएं कि यू आर बिलोंग टू हिम। दूसरा, मिडल पीरियड। अब जब यीशु मसीह आएंगे बादलों में, कलीसिया उठा ली जाएगी। जैसे नूह का सिर्फ खानदान, लूत का सिर्फ खानदान, जो उससे भी लोग हैं, वो सारे लोग पूरी दुनिया में से जो सो गए हैं, जो मर गए हैं, वो पहले, फिर उसके बाद जो जिंदा होंगे वो भी उठा लिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद ये 7 ईयर जब कलीसिया ऊपर आसमान पे रहेगी, तो ये 7 ईयर ऑफ ट्रिबुलेशंस, ये मुसीबतों का दौर होगा। This will be a period of great trial and great suffering. बड़ी मुसीबतों का दौर होगा। Unmatched in human history, जो दुनिया की तारीख है, उसमें ऐसे कभी पहले नहीं हुआ। मुझे 7 साल हो गए, पहले नंबर पर जो कलीसिया खाली जाएगी, फिर जो 7 साल का दौर है, उसमें क्या होगा, अभी उस पर गौर करेंगे। Begins with the rapture of the church. इसका स्टार्ट जो है वो होना है रैप्चर से। ऐसा नहीं कि आप बिना तैयारी करके बैठे हैं रैप्चर होना है। आपने 24 घंटे अपने आप को तैयार करना है कि हम कलीसिया के साथ उठाए जाए। जब रैप्चर होगा, उसके बाद की है मुश्किलात का दौर। मुश्किलात का दौर आने से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। यर्मिया 30 बार 3 से 7 आयत में लिखा है, जरमाया, कि खुदा यूं फरमाता है कि हमने हड़बड़ी, क्राइज ऑफ फियर, कुछ रोते हैं, कुछ जब रोते हैं कि उनके रोने की खौफ पाया जाता है। इस आवाज की बात करने में हड़बड़ी, खुदा यूं फरमाता है कि हमने बड़ी हड़बड़ी की आवाज सुनी, खौफ है, सलामती नहीं। ये छोटा सा एक वाकया हुआ है, और हम सब इतने सैड और परेशान। एक ऐसी
आवाज होगी, बड़ी क्राइज ऑफ फियर। अब पूछो और देखो, क्या कभी किसी मर्द को दर्दे से लगा? क्या सबब है कि मैं हर एक मर्द को जच्चा की मानत लाइक अ वुमन इन लेबर, मर्द को, क्योंकि मर्द ब्रेड विनर है मोस्टली, आदमी मोस्टली घरों को चला रहे हैं, तो मैंने मर्द को क्या देखा है, जच्चा की मानत अपने हाथ कमर पर रखे देखता हूं। यर्मिया ये नबूवत कर रहा है और उसमें रोया देख रहे हैं, और रोया का देख रहा है कि जो मर्द हैं इन्होंने अपने हाथ अपनी कमर पर रखे हुए हैं, जिस तरह औरत जब बच्चा जन्मती है उस वक्त अपने हाथों पर रखती है, कमर पर रखे देखता हूं, और सबके चेहरे जर्द हो गए। फियर है, कोई भी औरत जिसने बेबी पैदा किया है फियर होता है, एक बार मौत में से गुजरकर एक जिंदगी को जन्म देना पड़ता है औरतों को, और फियर है। अपने हाथ कमर पर रखे देखता हूं और सबके चेहरे जर्द हो गए। अफसोस वो दिन बड़ा है, उसकी मिसाल नहीं, वो यूट्यूब की मुसीबत का वक्त है, पर वो उससे रहाई पाएगा। इट विल बी अ टाइम ऑफ ट्रबल फॉर माई पीपल इज़राइल। इसका ये मतलब है कि जो मेरे इस्राएली लोग हैं उनके लिए भी ये बड़ा मुसीबत का वक्त होगा, yet in the end they will be saved। एक ही दिन में जूस जो है उन्होंने चेंज हो जाना है। ऐसा दिन हिस्ट्री में कभी नहीं आया। ये ट्रिब्यूलेशंस की बात कर रहे हैं और लिखा है, और ऐसा नहीं कि जो मर्द है जो अपने आप को दलेर और बहादुर समझते हैं, जिनकी आंखों में आंसू काम आते हैं, लिखा है वो भी उनके चेहरे जर्द होंगे और उन्होंने अपने हाथ कमर पर रखेंगे कि क्या हो रहा है। वजह ये है कि जब वक्त था तो यीशु मसीह को कबूल करके कलीसिया के साथ उठाए नहीं गए, इसलिए वो इस मुश्किलात में से गुजर रहे हैं। और यर्मिया इस वीर को देख रहा है, दानियल 12, और उस वक्त मीकाईल मुकर्रम फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हमारे के लिए खड़ा है उठेगा, माइकल हु प्रोटेक्ट योर पीपल, और वो मीकाईल उठेगा और वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तिदाए अक़वाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा। जब से कौमें बनी है इतना हार्ड वर्क, इतना हार्ड टाइम नहीं आएगा। इतनी बड़ी मुसीबत हमें तो छोटी छोटी मुसीबतें उन्हीं से बनाए, हमारे लिए ये हो गया, हमारी बीवी नहीं करते, हमारा काम नहीं करता, बच्चों का ये उसी से बने हुए हैं। ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जो मुसीबतें आने वाली हैं उनके हिसाब से फलां तंग करता है, शोर कुछ नहीं, तंग क्या करता है इकट्ठी से, क्योंकि आपने वो मुसीबत जो आने वाली है अभी तक नहीं देखी। और क्या लिखा है, ऐसी मुसीबत का वक्त होगा कि इब्तिदाई अक़वाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा, और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रहाई पाएगा। Whose name is found written in the book। पहले नंबर पे ये चेक करने की जरूरत है कि बुक में, जब वीडियो देखते हैं पास्टर भी रह गए, ऐसा नहीं कि ये पास्टर ने जरूर उड़ कर जाना है। अगर मैं प्रॉपर्ली सब कुछ नहीं कर रहा मैं भी यहां पे हूं। और क्या लिखा है, जिसका नाम किताबे हयात में नहीं लिखा हुआ वो यहां पे रहेगा, लेकिन जिसका लिखा है वो रहाई पाएगा, वो उड़ा दिया जाएगा। ये जो 7 ईयर्स का पीरियड है, मुकाशफा तेरा बाप और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताबे हयात में लिखे नहीं गए। नाम कहां पे लिखा जाता जी, बर्रा की किताब। और बर्रा कौन है, यीशु मसीह है। कोई शख्स भी किसी और अंबिया और किसी
बाब 15 से की, और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया। एक और काम है 59 साल हैवान का बुत, उसमें रूह फूंकेगा और वो बुत आगे से बोलेगा। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी इजाद हो चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी इजाद हो चुकी है। और कहां से हुई है? ये जो गूगल है आपको कुछ ये करते हैं, वो हमेशा आपको बता देता है। और ये क्या होगा कि बुत बोलेगा, इसमें रूह फूंकी गई है बोलने की। आप कुछ भी पूछेंगे वो बुत आपको आगे से जवाब देगा। और जितने लोग उस दीवान के बुत की प्रस्तुति ना करेंगे, अगेन सजदे करने जाएंगे, उस बुत ने अगर कलीसिया के साथ उड़ाए नहीं गए। मसले हमारे सामने हैं। नूह का खानदान बच गया, सारी दुनिया तबाह हो। लूत का खानदान बच गया, सारी दुनिया तबाह हो। इसी तरह कलीसिया उठाई जाएगी, सारी दुनिया ट्रायल एंड ट्रिबुलेशंस का सामना करेगी। और उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया ताकि वो हैवान का बुत बोलेगा। और जितने लोग उस हैवान के बुत की प्रस्तुति ना करेंगे, उनको कत्ल भी कराए। अगर आपने उस बुत की पूजा नहीं की, आपको कत्ल करवाया जाएगा। और ये वो है जो कच्चे पक्के क्रिश्चियंस हैं। क्रिश्चियंस हैं, कलाम भी पढ़ते हैं, चर्च भी आते हैं, ये भी देते हैं, सारा कुछ हो रहा है, अंदर से चेंज नहीं हुए, इन्हों में रह जाता है। और फिर ये कोशिश करेंगे कि हम अब कैसे बचें। बचने का कोई मकान नहीं, सर बस कटवाया जाना है। और अगर सर कटवा देंगे तो वो तब आप बचेंगे। अगर यीशु मसीह की खातिर कहेंगे कि मैं ना इस बुत को सजदा नहीं करना, जिस तरह दानियल ने किया है, अब्दुल नजूर ने किया है, हमने तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करना। अगर आपको एंटी क्राइस्ट आने वाला है, उसकी मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे, आप कत्ल करवाए जाएंगे। और 1,44,000 जो जमा होने हैं, यीशु मसीह के नाम पर शहीद होने वाले हैं, उनमें आपका शुमार होना है। बच जाएंगे, लेकिन गर्दन कटवानी पड़ेगी। और मैं कहती हूँ उदो जी गर्दन कटवानी थी, हमने क्या वक्त इसमें लगा तोबा कर ली। टाइम है, इतनी केड़ी गल इतना तो मुश्किल है। ऐसे मैं दूधे पानी च नहीं लैके जाता, मैं इन्ना पानी थले कढ़ना के बाद तो नाल ही एसोसीएट नाल जिंदगी गुजार छड्डो। ये सारियां दुनिया दी कहानियां कितना मुश्किल है। या सर कटवाना है या कलीसिया के साथ उठाया जाना है। अध्ययन और सिस्टम। और जितने लोग उस भगवान के बुत की प्रस्तुति ना करेंगे, उनको कत्ल भी करवाए। आपने कहना नहीं इसको मैं, क्योंकि मेरा कलाम सदियों से मेरे बाप दादा चर्च जाने वाले हैं, उन्होंने कहा किसी और को सजदा ना करना खुदा के सामने। बुद्ध को कैसे करें? बाम या गला कटवाएं या मोहर लगवाएं, आपको आपके पास सिर्फ दो चॉइस होती है। और गला कटवा लिया, फिर आप हैरान में उनको साथ शुमार किए जाएंगे जो हवा में उड़ाए गए हैं। लेकिन अगर आप गला नहीं कटवाते, मोहर लगवा देते हैं, तो फिर जो अज़ाब है हमेशा की आग है, उसके वारिस होंगे। और उसमें उस सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों, गरीबों, आजाद गुलामों के दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक एक छाप करा दी। जिन्होंने कहा अच्छा था, हमारे यहाँ भी देश से शायर होते थे, तो वैसे किसी पादरी हिजगर आए तो उन्होंने सेकंड कमिंग पे सर दिया। तो मैंने वैसे मजाक से पूछा उससे, मैं सर जी उनको मैं राइड देता था, मैं तुझसे भी मोड़ लगवानी थी कि कलीसिया ना होना है। ये पता नहीं है कि खुदा बेहतर जानता है। तो मैं जी अगर रह गए तो फिर मेडिसिन की में लोग नहीं लेते, कहते तो फिर मोड़ लगा लाते। अमीर साहब बहुत बड़े खूबसूरत शायरी करते थे, कहते ने फिर मोड़ लगवा ला। पर जिन्होंने मोड़ लगवा ली वो हमेशा की आग में चले जाए, उसके बाद कोई चॉइस नहीं है।
बचने का मौका है तो वो आज है। दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करवा दी, मार्क ऑफ द बीस्ट, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस दीवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। ऐसे हालात आने वाले हैं। ये जो कुछ हुआ है इससे दिल टूटा है, लेकिन जो आने वाले हैं मेरे अजीजों वो बर्दाश्त से बाहर है। खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे। कलाम में लिखा है, अपनी तरफ से नहीं बता रहा, जिस शख्स ने वो मुहर ना ली 666 की माथे पर, राइट हैंड पर, वो खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे। और अगर खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते, सर्वाइव कितनी देर तक आप कर सकेंगे? हिकमत का ये मौका है। जो समझ रखता है वो इस ईमान का अदद गिन ले। ये है अदद ईमान का, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। 666 666 की मोहर लगनी है। 666 की मोहर लगेगी। आप पहले 3.5 साल इवन 666 की लगी, आप 7 ईयर तक अगर बचे नहीं है तो चलते जाएंगे, लेकिन हमेशा का अज़ाब आपका मुकद्दर होगा। मुकाशफा 14 बाब 9 से 11 में लिखा है, फिर इनके बाद एक और तीसरे फरिश्ता ने आकर बड़ी आवाज से कहा कि जो कोई उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करे और अपने माथे और अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, वो खुदा के कहर की उस खालिस में को पिएगा जो उसके गज़ब के प्याले में भरी गई है, कप ऑफ रैथ। फिर खुदा ने जब आना है, आने से पहले सारी डिस्ट्रक्शन कर देनी है। जमीन और आसमान उल्ट जाएंगे, सितारे गिर पड़ेंगे, सूरज अपनी रोशनी नहीं देगा और आने से पहले मेरे जो ये डिस्ट्रक्शन सारी होगी। एक नया आसमान और नई जमीन वजूद में आएगी। 7 ईयर तक जीना है या लाइफ तक हमेशा हमेशा यीशु की हजूरी में रहना है। डिसीजन आपका है, डिसीजन आपका है। आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि जिसमें लिखा है खालिस रैथ, खुदा का रैथ गज़ब होगा, खुदा का गुस्सा बढ़ जाएगा। जिस चीज को हुक्म देगा उल्ट जाएगी और नुकसान देगी। लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी। और पाक फरिश्तों के सामने और बर्रा के सामने आग और गंधक के अज़ाब में मुब्तला होगा। कौन? जिसने मोहर लेनी है कि मुझे मिल जाए, थोड़ी देर सर्वाइव कर लूं। 2 ही चॉइस है, या कलीसिया में उठा लिया जाए या गला कटवाएं। फिर तो गला कटवाने के बाद भी आप उन 1,44,000 जो हैं उनमें शहीदों में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर ना गला कटवाना है और ना कलीसिया में जाना है तो फिर आग और गंधक के इज़ाब में मुब्तला होगा और उनके इज़ाब का धुआं अब्दुल्लाबाद उठता रहेगा। और जो उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। जिन्होंने मेरे से 666 की मोहर लगवा ली, जो ही मोहर लगनी है, सुकून उसी दिन आपका चला जाना है और आपको इस दुनिया में जो एंटी क्राइस्ट है, वो जो बुत बनाया जाएगा, जिसको बोलेगा ये सारी हुकूमत जो है ये चेंज हो जाएगी। हर मुल्क में चुप होना है और हर छोटे मुल्क में जो थोड़ा सा ताकतवर है उसका सहारा ढूंढना है। ये हमारे लिए कुछ किया जाए, हमारे लिए कुछ किया जाए। हमारा मुल्क तबाह हो गया है, हमारे पास पावर जाती रही है, हमारे जहाज टूट गए हैं, हमारा ये हो गया है। फिर एक शख्स उठेगा और वो पूरी दुनिया पर रूल करेगा। 3.5 साल पिछले जो रह गए हैं उनमें वो कहेगा कोई बात नहीं, आ जाओ, सलामती सुकून का प्रचार करेगा, मोहब्बत का प्रचार करेगा। लेकिन होगा एंटी क्राइस्ट, वो सारी दुनिया को कंट्रोल करेगा। एक ही करेंसी होगी पूरी वर्ल्ड में, एक ही जबान होगी, एक ही करेंसी होगी। और क्या होगा कि जो शख्स उसको अपने माथे पर लेगा, अफसोस कि वो दिन इतना बड़ा है हिस्ट्री में
اس کی مثال نہیں ملتی. دانیل کہتا ہے کہ ایسی تکلیف کا وقت جب سے مومن بنی ہے آج تک کبھی نہیں دیکھا. اور مکاشفہ نے کہا جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہیں ملا وہ پرستش کریں گے اس وقت کی، اور جو پرستش کریں گے باقی بانی ہے وہ اپنے ماتھے پر مہر لگوائیں گے اور وہی خرید و فروخت کر سکیں گے. لیکن میرے عزیزوں جو کلیسیا ہے یہ سارا دور جو مڈل پیریڈ ہے 7 ایئر کی ٹربلیشنز کا، اس سے پہلے کلیسیا جس طرح نوح کے طوفان میں خاندان بچ گیا، دنیا تباہ ہو گئی، لوط کا خاندان نکلا، سارے کا سارا شہر تباہ ہو گیا، اسی طرح بہن ہوا. اور یسوع مسیح کے پیچھے پورے طور سے چلیں گے چلتے ہیں تو ہمیں ان ساری مصیبتوں سے نہیں گزرنا پڑے گا. جب ریپچر ہوگا ہم اڑ کر اس کا استقبال کریں گے یسوع مسیح کا اور اس کے ساتھ رہیں گے ساتھ ساتھ، تاکہ ان کا انتظار ہو رہے گا جو گلے کٹوائیں گے. تو آج جسیر ہے میرا اور آپ کا، کلیسیا میں شامل ہونا ہے، گلا کٹوانا ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں جانا ہے. خدا اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے. سیکنڈ کوشچن نیکسٹ سنڈے ہوگا. زوردار تعلیم.